Welcome to the channel for the Easy Trick computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. That tutorial is related with the reference model TCP/IP, that is the transmission control protocol with the internet protocol. So the reference model open system interconnection was already available into this channel and link available into the description box. And those students who don't learn about the open system interconnection model, that is the mandatory part, you will learn firstly the open system interconnection. After that, you will shift into the transmission control protocol, internet protocol reference model. And that particular model related with the internet protocol suite, and the naming under convention of this internet protocol suite is the TCP/IP. So OSI model is used for the computer networking and the internet services, but when the person uses only the internet services, when you will enter into the online mode, the TCP/IP protocol suite will used over the backend of the internet services. So the protocol having the same layers that is under the OSI model layers. So there is the two type of function over there. ट्रांसमिशन भी करवाना है और इंटरनेट जितना भी कोई यूजर चला रहा है उसको प्रोटोकॉल उसको रूलिंग स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट में भी रखना है। जो ट्रांसमिशन करवानी है वो ओएसआई के साथ क्यों कंपल्सरी है। So this is the comparison of the OSI model and the TCP/IP model, and also in this particular slide we will see the layers of the TCP/IP. TCP/IP having the four-layer function, that is the link and physical, inter-network transport, and the application layer, while OSI model having the different facility with the seven-layer functions. Because of OSI model handles the computer networks sharing on the local area network, metropolitan area network, whatever it is. But when you will enter into the internet protocol suite, the TCP/IP having only four layers, but with the sharing system, internet will be used on that time, OSI also working. So the combination of physical link layer and the data link layer functions of the OSI model performed by different layers one by one, and the same thing with the TCP/IP model with the link and physical layer. Because link and physical layer जो TCP/IP की है वो डायरेक्ट वर्किंग क्यों कर रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिवाइस के साथ अटैच हो और आप इंटरनेट की सर्विसेज को जैसे ही किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले लेते हो तो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाते हो इंटरनेट वर्किंग के ऊपर, आप शेयरिंग अगर नहीं कर रहे। अगर आप वाईफाई सपोर्ट के अंदर हो फिर तो डेफिनेटली शेयरिंग चल रही है, तो ओएसआई मॉडल के थ्रू आपकी फंक्शनिंग सारी चलेगी, बट टीसीपी/आईपी का सारा फंक्शन भी ओएसआई भी चला रही है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों मिलकर करते हैं कि बिट ट्रांसमिशन भी करनी है और उसके साथ साथ फ्रेम्स भी एंटरटेन करवाने हैं एंड एरर भी कंट्रोल करनी है, फ्लो भी कंट्रोल करना है, सब कुछ करना है, तुझे लिंक एंड फिजिकल ही करवाएगी। नेटवर्क जैसे ही आ जाता है वहां पे हम लॉजिकल एड्रेस की बात कर देते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की, तो वही काम इंटरनेट वर्क का लेयर भी कर रही है, क्योंकि वो इंटरनेट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ डायरेक्टली जोड़ने लगती है और ट्रांसपोर्ट की कहाँ से वो सिस्टम मैनेजमेंट में आपके पास एंटर होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन है वो भी वही है जो ओएसआई खुद परफॉर्म कर रही है। आफ्टर दैट जैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विसेज ले रखी है या नहीं दे रखी है और राउटर ने उसको ट्रांसफर करना है, तो एप्लीकेशन आप डायरेक्ट चला सकते हो। प्रेजेंटेशन सेशन एप्लीकेशन का जो काम डिसाइडेड होना था वो सब कुछ एप्लीकेशन लेयर कर चुकी है। इस मॉडल के हिसाब से आपको इस पार्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंपैरिजन भी मिल रहा है। प्रोटोकॉल जरूर डिफरेंट होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के, उसके बारे में अब अभी बात करते हैं कि प्रोटोकॉल का डिफरेंशिएबल मैटर कहाँ दिखता है। देखिए, लेयर और फंक्शंस परफॉर्मिंग में एप्लीकेशन सर्विस में आप वर्ल्ड वाइड वेब भी खोलते हो, ईमेल्स के साथ भी वर्क करते हो और अदर एप्लीकेशंस जितनी आप यूज करते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही है कि एंड टू एंड मैसेज इंटीग्रिटी देनी है कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो उसको देगा, उसके अलावा ये किसी को भी मैसेज जो है वो ट्रांसफर नहीं करता।
बिकॉज ऑफ की ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ भी जुड़ गई है, तो यूडीपी का जो पार्ट है, इसमें यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल है ये करता क्या है, दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और प्राइमरी इसको यूज करना पड़ता है। प्राइमरली मीन्स प्राइमरी नॉट प्राइमरीली। प्राइमरी मीन्स की प्रोटोकॉल जो एस्टैब्लिश किया गया है कि आपका अगर कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस और इंटरनेट के बीच में स्लो कहीं हो रहा है, तो बैंडविड्थ कहीं अपग्रेड ना हो, तो यूडीपी का प्रोटोकॉल यहाँ पे परफॉर्मेंस में एंटर कर जाता है, क्योंकि इसे डोमेन नेम सिस्टम भी चाहिए होता है, और आप एप्लीकेशन में जो SNMP यूज कर रहे हो, दैट इज द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी यूज कर रहे हो। HTTP तो आपकी वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP तो इसका काम ही यही है, ट्रांसमिशन करवाना ही करवाना है। और फिर इंटरनेट ने कनेक्शन लेस सर्विसेज भी देनी है, और पैकेट डिलीवरी भी करनी है, और नेटवर्क इंटरफेस जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज आपको दे रहा होता है। ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का कंपैरिजन है अब यहाँ पे कि हमारे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में जो कंपैरिजन ऑफ मॉडल का एंट्री दिखती है कि वो कैसे एंट्री होती है। अब आप देखिए, फिजिकल लेयर चाहे नेटवर्क लेयर के साथ काम कर रही है, हमारा लेयर फिजिकल लेयर दोनों जो सबनेट के ऊपर पड़ी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे सबनेट वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि TCP/IP आप एक छोटा नेटवर्क यूज करता है इंटरनेट का। सबनेट जो होता है ना, सबनेट को हम छोटा नेटवर्क नहीं बोलते। अगर हम इसको इंटरनेट से रिलेट करेंगे तो दिस इज द सेगमेंटेड पीस ऑफ द लार्जर नेटवर्क, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन इसे यूज कर सकता है। तो इसमें इसकी टेक्नोलॉजी यूज होती है ईथरनेट एंड द टोकन रिंग। टोकन रिंग हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्क कर रहा होता है इंटरनेट लेयर के साथ, ये तो है ही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी की हमने अभी बात की है ट्रांसमिशन लेयर के साथ। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर के साथ FTP है, FTP इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आप किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज ही सिर्फ भेज सकते हो। SMTP हमेशा मेल के साथ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड द टेलनेट जो है वो एक हमारा कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पार्ट की कि टेलनेट का जो पहले हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, टेलनेट की फुल फॉर्म जो है यहाँ पे यूज हो रही होती है कि टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि उसमें एस्टैब्लिश करवाना है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल का एक कनेक्शन। और यूजेज कहाँ होती है, यूजेज है इसकी टर्मिनल इवोल्यूशन प्रोग्राम्स। जो टेलनेट का कभी पोर्शन चलता है तो इसकी यूजेज में काम किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल इवोल्यूशन प्रोग्राम्स। बट इसको एज अ प्रोटोकॉल अगर यूज किया जाता है तो टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। देयर आर टू नेम्स, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड विद द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं टर्मिनल इवोल्यूशन प्रोग्राम्स, जो अलाउ करता है हमें जो हम लॉग इन कर सकते हैं किसी रिमोट होस्ट से डायरेक्टली। वो कंपनीज में कनेक्शंस यूज हो सकते हैं, 1-to-1 कनेक्शंस नहीं यूज होते। और हमारा अब जो मेजर है इसके बाद जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, डोमेन नेम सर्विसेज तो हमने हमेशा ही यूज करनी ही करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन चला रहे हो तो डोमेन नेम सर्विसेज के साथ डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल चलेगा ही चलेगा, DNS, क्योंकि इसको चाहिए ही चाहिए। अब राउटिंग चाहिए तो डेफिनेटली है कि प्रोटोकॉल उसके लिए भी बना होना चाहिए। जब राउटिंग देनी है तो RIP जो हमारा दे रहे हैं हम, वो प्रोटोकॉल है, वो RIP कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो आपने कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रखा है। RIP यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो तो ये यूज होता है तो हम इसको बेसिकली एक राउटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का मीनिंग ही काम होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, तो फॉलो तो उसको करना ही पड़ेगा। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो फिर हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को यूज करके डायनामिकली जितनी भी मीट्रिक बीच में यूज होके हमारे पास डेटा आ रहा है या पाथ क्या शो कर रहा है, उसको ये रिजॉल्व करने के लिए हमने रखा होता है। ये प्रोटोकॉल्स का भी डिफरेंस आपको दिख गया। इसलिए प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है कि अगर आपको TCP/IP को अच्छी तरह से सीखना है तो पहले आपको OSI मॉडल अच्छे से सीखना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप इसको सीख सकते हो।
ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है वैसे सारा टॉपिक, बट अब हम एक रिव्यू देख लेते हैं इसका। दिस इज द एप्लीकेशन लेयर। इसमें हमने यही पढ़ा ना कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी यही एप्लीकेशन ही करती है और आपको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है विद द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, दैट इज द टीसीपी एंड द यूडीपी। एंड द नेक्स्ट रिव्यू है हमारी लेयर जो है, यहाँ पे हमने देख लिया ना कि एग्जांपल भी वही चल रही है कि जो फिजिकल लिंक लेयर के साथ जब ये डिलीवरी करवाती है किसी एप्लीकेशन को, तो लोकल एरिया नेटवर्क पे भी करवा सकती है और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के साथ भी करवा सकती है। और एक हमारा और प्रोटोकॉल है, दैट इज द TFTP, दैट इज द ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें FTP कोई वर्जन आपने यूज करना होगी, किसी को SMS कर रहे हो या ऐसा कोई टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ग्रुप के थ्रू, तो तब यूज होता है। ये हमारी होस्ट की कुछ लेयर्स होती है, जिसमें अब आप देख रहे हो कि टारगेट है वेब सर्वर और होस्ट किसी लैपटॉप से जो काम करवा रहा है, वो भी फिगर इसमें इंटरनेट की दी गई है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ यूज हो रहा है और आपका TCP या HTTP कहाँ यूज होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का मेजर फंक्शन ही वही है कि उसने एरर डिटेक्ट रिकवरी कुछ भी होती है, अगर बैंडविड्थ डाउन जाती है तो उसको प्लग इन दोबारा भी करना है। और अगर कोई टाइम आउट भी हो गया है, डाउनलोडिंग आप कर रहे हो, टाइम आउट हो गया तो दोबारा से भी रीसेटिंग दोबारा शुरू कर देता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की भी। इंटरनेट का तो मेजर फंक्शन ही यही है कि नेटवर्क लेयर को हैंडल करे विद द वेरियस कमांड्स की यूजर करना क्या चाहता है, और नेटवर्क लेयर तो वही काम को असेस सब कर रही होती है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देख लिया है कि पार्ट जो रिव्यू में जा रहे हैं वो सारे TCP के OSI के साथ ही है। सो इसलिए आपको मैं अपनी रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कर रही हूँ कि लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OSI मॉडल का, काइंडली उसको चेकआउट कीजिएगा। And the next topic of the computer networks definitely uploaded very soon in this particular channel. And if you have any type of query, kindly comment it to the comment box. And if you feel that the video is very helpful to all of you, kindly comment it to the comment box. And if you need anything more, again kindly comment into the comment box. So stay tuned with the channel. Thank you so much. Take care. God bless you.